Hello everyone, my name is Umesh Nagtode and today we are going to study about Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act which came to existence in the year 1985. Okay? So इस एक्ट के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब इसमें जो नार्कोटिक टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड नार्कोस से लिया गया है और नार्कोस का मतलब होता है टू स्लीप। सो दी नार्कोटिक ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं। सो हियर व्हाट वी कंक्लूडेड दैट द नार्कोटिक आर दी ड्रग्स विच इंड्यूसेस स्लीप। ओके, अब बात करते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की। सो दिस आर दी ड्रग्स विच अल्टर्स द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। दे अल्टर्स योर परसेप्शन, दे अल्टर्स योर कॉन्शियसनेस, दे अल्टर्स योर मूड। ओके, सो हमें यहाँ पता चला कि नार्कोटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके मूड को, आपके कॉन्शियसनेस को, आपके परसेप्शन को अल्टर कर देते हैं, आपके ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसको अल्टर कर देते हैं। सो बोथ द ड्रग हैव देयर मेडिसिनल यूजेस बट वी ऑल्सो नो दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। सो ये ड्रग्स डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। दैट इज वाई दिस ड्रग्स आर सेड टू बी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। The government started statutory control over the narcotic drug under the Opium Act 1878 and the Dangerous Drugs Act 1930. So इंडिया के पास 1985 तक के particularly narcotics drug and psychotropic substances के लिए कोई भी legislation नहीं था। So जो भी statutory control थे वो सारे के सारे Opium Act 1878 और Dangerous Drug Act 1930 के अकॉर्डिंग चल रहे थे। Then finally in the year 1985 particularly narcotic drug and psychotropic substances के लिए ये एक्ट आया जिसका नाम था नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ओके, सो इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड थी, क्या क्या चीजें परमिटेड थी, क्या करना ऑफेंस था, उसमें क्या पेनल्टी देनी पड़ सकती थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में आज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इन शॉर्ट एनडीपीएस एक्ट भी कहते हैं। So before starting this act, we should know the some basic terminologies that are going to be used under this act, in which first is cannabis. So cannabis is also known as hemp. It is obtained from the plant Cannabis sativa lin, which belongs to family Cannabinaceae. So there are few substances which are obtained from the cannabis plant, in which first is charas, which is actually a separated resin, whether it is crude or in purified form. Then next is medicinal hemp. Medicinal hemp means any extract or tincture that is prepared from cannabis. Okay. Then ganja is the flowering or fruiting tops of cannabis plant. So here we can see the cannabis plant and also there is an image of ganja which is flowering and fruiting tops of cannabis plant. Next is coca derivative. So here coca is actually a dry leaves of plant Erythrocylone coca, and all the substances that we obtained from coca is known as coca derivatives, in which first is crude cocaine. So crude cocaine is extract of coca leaf which can be used for the manufacture of cocaine. जिसका मतलब है कोकेन बनाने के लिए कोका लीफ के एक्सट्रैक्ट का यूज होता है जिसे हम क्रूड कोकेन कहते हैं। Other than this, icogonine and all other derivatives found in coca leaves are known as coca derivatives. Okay. So here in this image we can see the field of coca plant and also we have close-up image of coca plant. Next is opium poppy. So opium poppy is the plant of species Papaver somniferum which belongs to family Papaveraceae. So here we can see plant of any other species of Papaver from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted is said to be opium poppy. Okay, जिसका मतलब है पपावेर स्पीसीज से वो हर एक प्लांट ओपियम पॉपी कहलाएगा जिससे कि ओपियम या फिर कोई और फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो हियर वी कैन सी फील्ड ऑफ ओपियम प्लांट एंड इमेज ऑफ ओपियम फ्लावर। Okay, so next is opium and derivatives. What are opium derivatives? The coagulated juice of opium poppy. Then medicinal opium and prepared opium, phenanthrene alkaloids such as morphine, codeine, thebaine, diacetylmorphine, that is also known as heroin. So all these substances are opium derivatives. Okay.
So here in this image we can see the opium bulbs, and there is a milk like liquid coming out from this bulb by incision. So when these milky substances are dried, we obtain dried opium. Okay, so here next one is poppy straw. All parts except the seeds of the opium poppy after harvesting, whether in their original form or cut, crushed or powdered. Okay, that means except seeds, all parts of the opium poppy is said to be poppy straw after harvesting. So this part can be in original form, cut, crushed or in powder form. Okay, so here we can see the poppy straw, which is actually a dried bulb of opium poppy. Okay, so here we can see the administrative part of this act, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Consultative Committee. So basically it is a group of people and committee who advise the central government on the matters regarding the administration of this act. Okay, so basically this committee is actually a caretaker of this act, जिसका मतलब है कि ये कमेटी हर एक केसेस को ऑब्जर्व करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है रिगार्डिंग द चेंजेस अंडर दिस एक्ट. अदर देन दिस कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सम ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट, जिन्हें हम बेसिकली नार्कोटिक कमिश्नर के नाम से जानते हैं. सो नार्कोटिक कमिश्नर बेसिकली सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं. कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी हो रहा है या फिर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना इनका काम होता है. अदर देन दिस दे कैन टेक एक्शन regarding the NDPS Act by the order of central government. Now let's see what are the prohibition under this act. All the activities under this act regarding the cultivation, manufacturing, possession, transport, import, export, all these things are permitted only in the supervision of Narcotic Commissioner, who is appointed by the central government. Okay, so जो यहाँ पे cultivation, manufacturing, import, export या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर उसको पोजेस करने का काम है, ये सारी चीज़ें जो है अगर नार्कोटिक कमिश्नर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है उसके सुपरविजन में होता है, तो ये सारी चीज़ें परमिटेड हैं. ओके, लेकिन अगर यही चीज़ें हम विथआउट परमिशन, विथआउट नोइंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड है. ओके, तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रोहिबिशन, रेगुलेशन और कंट्रोल में पढ़ने वाले हैं. इन विच फर्स्ट इज कल्टिवेट कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट, जिसका मतलब है कोका प्लांट को कल्टिवेट करना या फिर कोका प्लांट के किसी भी पोर्शन को या पार्ट को गैदर करके रखना, एक जगह पर जमा करके रखना गलत है और ये प्रोहिबिटेड है. देन नेक्स्ट इज कल्टिवेट ओपियम पॉपी और कैनाबिस प्लांट. इसके अलावा ओपियम पॉपी और कैनाबिस प्लांट का भी कल्टिवेशन करना विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट गलत है और ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है. Next is produce, manufacture, possess, sell, purchase, transport, warehousing, use, consume, import into India, export from India or transship any narcotic drug or psychotropic substances. So ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए ये सारे की सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं अगर हम इस चीज़ को नार्कोटिक कमिश्नर के सुपरविजन में नहीं कर रहे हैं तो. देन नेक्स्ट इज पावर एंड परमिट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या उनकी पावर है और किन चीज़ों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको परमिट कर सकती है. इन विच फर्स्ट इज कल्टिवेशन, गैदरिंग, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड यूज ऑफ कोका प्लांट, जिसका मतलब है कोका प्लांट के कल्टिवेशन, गैदरिंग, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको परमिट कर सकती है ओनली इन द सुपरविजन ऑफ नार्कोटिक कमिश्नर. ओके, द नेक्स्ट इज कल्टिवेशन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम पॉपी एंड पॉपी स्ट्रॉ. ओके, सो ओपियम पॉपी एंड पॉपी स्ट्रॉ के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और कल्टिवेशन में भी हमको परमिशन मिल सकता है ओनली इन द सुपरविजन ऑफ narcotic commissioner. The next is the sale of opium and opium derivatives for export from India or sale to state government or to manufacturing chemist, जिसका मतलब है अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट को या फिर इंडिया से बाहर अगर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो उसका परमिशन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है. ओके, सो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या पावर थी, किन चीज़ों के बारे में वो हमें परमिट कर सकती थी. अब देखेंगे हम कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो किन चीज़ों के लिए हमें परमिशन दे सकती है. इसमें फर्स्ट है द पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, सेल, परचेस, कंजप्शन एंड यूज ऑफ पॉपी स्ट्रॉ एंड ओपियम.
यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट और इम्पोर्ट इंटर स्टेट, जिसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ परमिट कर सकती है ट्रांसपोर्ट करने का इंटर स्टेट। ओके, इंडिया से बाहर अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसकी अथॉरिटी हमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट, सेल, परचेस, कंजप्शन और यूज ऑफ कैनबिस। ठीक है, इसका मतलब है कैनबिस प्लांट को अगर कल्टीवेट करना है, प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर पोजेस करके रखना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। इसके अलावा अगर कैनबिस प्लांट का हमको इंपोर्ट करना है इंटर स्टेट या फिर एक्सपोर्ट करना है इंटर स्टेट, तो वैसे सिचुएशन में भी हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। ओके, सो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि अंडर द एनडीपीएस एक्ट क्या क्या चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड हैं, क्या क्या चीज़ें परमिटेड हैं, किससे हमें परमिशन लेनी है, किसके सुपरविजन में हमें ये सारे काम करने हैं। तो इस एक्ट में ये सारी चीज़ें पहले से प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से डील करना होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इन रूल्स का, इन परमिशंस का या इन पावर्स का मिसयूज़ करते हैं या फिर इन रूल्स का वायलेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, क्या गलतियां हमसे हो सकती है, उसके बारे में हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में पढ़ेंगे। ओके, सो हियर द फर्स्ट ऑफेंस इज कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, कैनबिस और कोका प्लांट विथआउट लाइसेंस, जिसका मतलब है विथआउट लाइसेंस अगर हम ओपियम या फिर कैनबिस या फिर कोका प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। तो इसमें पेनल्टीज है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। यहाँ पर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जैसे टर्म का यूज हुआ है, जिसका यूज बहुत ही कम एक्ट्स में देखने को मिलता है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कठोर सजा। ओके, अगर हम विथआउट परमिशन या विथआउट लाइसेंस ओपियम का, कैनबिस का या फिर कोका प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं तो हमें 10 साल का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर हमें 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम बाय लाइसेंस्ड फार्मर। तो यहाँ पर एम्बेजलमेंट का मतलब होता है फ्रॉड करना। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस्ड फार्मर है जो कि विथ परमिशन जो है कल्टीवेशन कर रहा है ओपियम का या फिर कैनबिस का, और अगर उससे कोई पर्सन एम्बेजलमेंट करता है यानी कि फ्रॉड करता है, उसके लिए क्या सज़ा होगी। ठीक है, तो उसके लिए उसे 10 to 20 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है प्लस 1 to 2 lakhs ऑफ फाइन उसे देना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट और यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस ऑफेंस के लिए मल्टीपल कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसके लिए क्या इम्प्रिजनमेंट होगा, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 10,000 रुपीज और बोथ। अगर सेम ऑफेंस मीडियम क्वांटिटी में या फिर लार्ज क्वांटिटी में होता है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन शुड बी 1 लाख रुपीज। अगर यही चीज कमर्शियल क्वांटिटी में की जाए तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 to 20 ईयर्स एंड फाइन अप टू 1 to 2 lakh रुपीज। So here the next offense is external dealings in NDPS Act. For example, engaging in or controlling trade whereby drugs are obtained from outside India and supplied to a person outside India. जिसका मतलब है NDPS Act में mentioned सभी ड्रग्स का स्मगलिंग करना आउटसाइड द इंडिया या फिर उसमें किसी भी तरीके से पार्ट लेना एक ऑफेंस है, जिसकी पेनल्टी के तौर पे हमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 to 20 ईयर्स हो सकता है या फिर हमें 1 से 2 लाख रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज allowing one's premises to be used for committing an offense, जिसका मतलब है कोई ऑफेंस करने के लिए किसी को प्रीमाइस या फिर कोई प्लेस प्रोवाइड करना है ना, तो ये भी एक ऑफेंस में आता है और इसके लिए हमें सेम पेनल्टी पे करना पड़ेगा जो कि उस ऑफेंस के लिए पर्टिकुलरली लगता है। देन नेक्स्ट इज वायलेशंस pertaining to controlled substances, जिसका मतलब होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस लाइक ओपियम, कैनबिस, कोका। तो इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग कोई भी रूल्स है अगर उसका हम वायलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स या फिर हमें 1 से 2 लाख रुपए फाइन देना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स, जिसका मतलब अगर कोई पर्सन इस एक्ट का वायलेशन कर रहा है और उसे हम फाइनेंस कर रहे हैं या फिर उसे वो ऑफेंस के लिए प्रीमाइस या फिर प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10 to 20 ईयर्स और इसके साथ में हमें फाइन भी देना पड़ सकता है 1 से 2 लाख रुपीस का। Okay guys, so this is all about NDPS Act, that is Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act.
Hope you enjoyed the video and thank you very much for your attention.